Hello, fourth standard students. We are learning EVS 1 and the lesson number is 2 and the name of the lesson is the interrelationship between living things. So see that interrelationship between living things means actually they are related to each other for living, for survival. Okay, so that survival, the foundation of survival between them is called relationship between them. Means each and every living thing in the surrounding is connected and related to each other for their survival. सब लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए, उनको इंटर रिलेशनशिप बोलते हैं. अभी देखेंगे हम इसमें. ओके, सम पिक्चर्स आर गिवन here. This is a big tree. The trunk of the tree is too big, too thick, and you have to recognize the name of the tree. You have to mention that in homework. Look here, last time also I gave you homework in the video itself, but some of you did not find that I gave you homework. So this time I am telling you that when you watch video, that time you just take care and listen carefully where I gave you homework. Okay, so this is your homework. The name of the tree you will have to mention. Okay, the first. Now look here. Now can you tell, plants in our surroundings are useful to us in different ways. The names of some plants are given below. For what purpose do we use their leaves? यू नो दैट वेरी वेल कि हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स है वो सब हमको यूज़फुल है, हर काम में हमारे पड़ते हैं, कोई डिफरेंट काम में. ओके, तो अभी नीचे लिखे गए हैं कुछ नेम्स प्लांट्स के. तुम लोगों को लिखना है कि उनका पर्पस क्या है, उनके लीव्स का. ओके, सो देखो, द फर्स्ट वन इज गिवन द बीटल वाइन. बीटल वाइन यू नो दैट इट इज़ अ एडिबल लीफ. ओके, the flame of the forest, Pallas, and the Marathi name is Pallas. You know that the flame of the forest in English name, scientific name. Another is fenugreek, is methi. It is available in the market, vegetable market. It is used as food. Okay, and some medicinal use also. Then Vasaka, Adulsa. The another name, Marathi name is Adulsa, and the scientific name is Vasaka. So curry leaf plant. Okay, curry leaf. So curry leaf, the use of the curry leaf you know very well, that is all well known. So these are the leaves of the plants. Now listen, you have to actually mention this. This is also your homework. Okay, you have to mention this in your homework, writing the use of this leaves of these plants given here. Okay, the next one now. The needs of living things are met in their environment. So जो लिविंग थिंग्स की जो भी नीड है, उनको जो भी ज़रूरत लगती है थिंग्स की, वो उनको एनवायरनमेंट से मिलती है. सो वी शैल सी दैट व्हाट दे गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. वी हैव मेनी नीड्स लाइक फूड, वाटर, एयर, clothes and shelter, and all these needs are met in our surroundings. So look, what we need for survival, to live, हमको जिंदा रहने के लिए क्या किन थिंग्स की नेसेसिटी है, ज़रूरत है. देखो, हमको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, क्लोथ चाहिए, शेल्टर चाहिए. these are very important and basic needs of our things. Okay, and all these things we get from the environment. Okay, now look here, there are some pictures also given here, you can see that. Now in fact, food, water and air are the needs of all living things, and they are all fulfilled in the environment, but there are differences in the needs of each kind of living things. For example, the water that a mouse drinks in an entire day would not be enough for an elephant even at one time.
तो जितने भी ज़रूरतें हैं हमारी और लिविंग थिंग्स की वो सब एनवायरनमेंट से पूरी होती है, लेकिन हर लिविंग थिंग की ज़रूरत डिफरेंट होती है। ओके, फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने कि एक माउस जो दिन भर में वाटर पीता है ना, वो एलिफेंट के लिए एक टाइम के लिए भी ये नहीं है, इनफ नहीं है, क्योंकि एलिफेंट साइज ऑफ एलिफेंट इज़ टू बिग, ओके, एंड माउस इज़ टू स्मॉल। सो लुक नाउ हियर, थिंक अबाउट इट नाउ, इसके बारे में सोचना है। सो बटरफ्लाइज फीड ऑन द nectar of flowers. Can a frog do the same? A sheep eats the leaves of shrubs. Can a tiger do the same? A fish can breathe in water. Okay, but can a pigeon do that? So bulrushes grow in water. Can a lemon tree do so? So look, here are some examples given. Look that these living things, for example plants and animals, they need a different surrounding also to grow. Some of them are given here, that sheep, okay, it eats shrubs, okay, but tiger cannot eat the shrubs, cannot eat the leaves of the tree as the goat do. गोट जैसे लीव्स खाती हैं, वैसे कोई टाइगर पत्ते खाता नहीं है। ओके, अ फिश कैन ब्रीथ इन द वाटर, बट कैन अ पिजन डू दैट? जैसे कि फिश पानी में सांस ले सकती है, लेकिन पिजन कर सकता है वैसा? तो ऑफकोर्स नॉट। तो बुल रशेस ग्रो इन वाटर, कैन ए लेमन ट्री डू दैट? वैसे ही बुल रशेस ही क्या है? वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट, वो वाटर में ही ग्रो होता है। लेकिन लेमन ट्री ये ग्राउंड पर ग्रो होता है, वो वाटर में ग्रो हो नहीं सकता। तो इन लोगों का, इन जो थिंग्स का, प्लांट्स का और एनिमल्स का, इनको डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग चाहिए ग्रो होने के लिए। नाउ लुक हियर, कैन यू टेल, अगेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, इफ फिश लीव द वाटर विल दे बी एबल टू लिव ऑन लैंड? क्वेश्चन किया गया कि क्या फिश ने लैंड छोड़ दिया, ओके, वाटर छोड़ दिया और लैंड पर रहना शुरू कर दिया, क्या रह सकेंगे वो? आंसर इज नॉट पॉसिबल। नाउ ट्राई दिस, ये तुमको करना है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट गिवन हियर। सो व्हाट्स दैट एक्सपेरिमेंट? लेट्स सी। टेक 2 small boxes, label them box 1 and box 2, fill them 3/4 with soil, make the soil moist enough to sow seeds। अभी क्या करना है कि तुमको 2 small boxes लेना है, और उनको नाम देना है, लेबल नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके, और 3/4 तक हर बॉक्स को भर देने का है सॉइल से, ओके। और थोड़ा वो सॉइल कैसा चाहिए? मॉइस्ट चाहिए, मॉइस्ट यानी थोड़ा गीला चाहिए, ताकि उसमें हम सीड्स को सो कर सकें। अभी देखो नंबर 2, सो 2 स्प्राउटेड मॉथ मटकी सीड्स इन ईच बॉक्स। अभी देखो हर बॉक्स में मटकी के सीड्स को लगाने का है, स्प्राउटेड सीड्स, ओके ना, स्प्राउटेड मालूम है जिसको आता है, स्प्राउट आता है, उनको लगाने का दोनों बॉक्स में। गिव 2 spoons ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स 1 ओनली वंस एवरी डे। गिव 4 spoons ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स 4 times a day। डू दिस फॉर 6 days। तो तुम लोगों को क्या करना है कि एक बॉक्स में जो मटकी है उसको 1 spoon वाटर देने का है एक ही टाइम पे दिन के, ओके, और दूसरे बॉक्स में जो मटकी का सीड हमने सो किया है उसको 4 spoon वाटर 4 टाइम देना है एवरी डे, और ये 6 days करने का है, ओके। यू कैन सी इन द पिक्चर दोज प्लांट्स इन द बॉक्सेस, ओके। नाउ व्हाट विल यू सी आफ्टर सम डेज? नो, आफ्टर 6 days व्हाट विल यू सी? द प्लांट्स इन बॉक्स 1 आर ग्रोइंग वेल, बट द प्लांट्स इन बॉक्स 2 हैव बिगन टू रॉट। तुम देख सकते हो ये पिक्चर में भी, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कि बॉक्स नंबर 1 के जो प्लांट्स हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं, ओके, बट बॉक्स नंबर 2 उसका जो प्लांट है वो पूरा रॉट हो गया है। क्वेश्चन किया है फिर कि ऐसा क्यों हुआ? व्हाट डज दिस टेल अस? इससे हमको क्या पता चलता है? प्लांट्स दैट आर नॉट एक्वेटिक प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन मार्शी एरियाज।
अभी देखो जो एक्वेटिक प्लांट्स नहीं है, यानी जो वाटर में बढ़ने वाले प्लांट्स नहीं है, वो मार्शी एरिया में बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। मार्शी यानी जहाँ पे वाटर रहता है, वाटर ग्राउंड, वहाँ पर वो बढ़ नहीं सकते, वो सड़ जाएंगे। ओके, एंड इफ दे गेट मोर वाटर देन दे नीड दे रॉट, और अगर उनको ज़्यादा पानी, उनको जितना चाहिए उससे ज़्यादा पानी मिल गया तो वो डेफिनेटली सड़ जाएगी। ओके नाउ, so any type of living thing will be found only where all its needs are fulfilled। तो सबसे पहला बेसिक रूल ऑफ द लिविंग थिंग क्या है कि वो ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे उनकी एवरी नीड फुलफिल होती है, पूरी होती है। ऐसी जगह पे लिविंग थिंग्स हमको दिखते हैं। नाउ लुक हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द टाइगर। अ टाइगर हैज़ स्ट्रिप्स। अ टाइगर लाइज इन वेट फॉर prey among tall grasses, and his prey cannot see it in the grass because of the strips. And there are animals like the deer, the nilgai, and the bison in grasslands. When the tiger is hungry, it can feed on them. For a tiger, there also needs to be a water hole nearby, which never dries up even in the summer. So there must also be dense vegetation, tall grasses or caves in hills or mountains in the area so that the tiger can find shelter. So look now, one example is given of an animal, that is tiger. टाइगर का पिक्चर बहुत लोगों ने देखा होगा, इवन इन द जू आल्सो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन। तो देखो उसको क्या रहता है, टाइगर के इस पर स्ट्रिप्स रहते हैं। ओके, ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो स्किन। ओके, और वो अपने टॉल ग्रास में छिप कर प्रे का ये करता है, वेट करता है। प्रे यानी उसका शिकार, और वो प्रे उसको देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप्स ऑन इट। वो जो स्ट्रिप्स है उसके वो टॉल ग्रास में मैच हो जाते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि इसमें टाइगर है, और टाइगर इसका फ़ायदा उठाकर उनको मार देता है। ओके, तो देखो वो कौन से एनिमल्स को खाता है, ज़्यादातर कौन से हंट करता है? डियर है, नीलगा है और बाइसन है, क्योंकि ये एनिमल्स ग्रास लैंड में ही रहते हैं, क्योंकि वो ग्रास खाते हैं। ओके, और टाइगर जब हंग्री होता है तब इन एनिमल्स को मारता है। देखो अभी टाइगर के लिए कौन सा एनवायरनमेंट नेसेसरी है? उसके लिए टॉल ग्रास होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इट में हाइड एंड प्रे। ओके, थिक वेजिटेशन बहुत ज़रूरी है। थिक वेजिटेशन यानी बहुत झाड़ियाँ होनी चाहिए, घनी झाड़ियाँ, टॉल ग्रासेस होना चाहिए, केव्स होने चाहिए, हिली एरिया होना चाहिए, माउंटेनस एरिया होना चाहिए जिसमें वो रह सके। इट्स अ शेल्टर ऑफ टाइगर। ओके, और इस तरह से फिर वो उसको उधर पानी का भी एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से वो पानी पी सके। ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द टाइगर टू लिव। ओके, अभी देखो टाइगर इन हैबिट्स इन एरिया वेयर ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। तो ऐसी जगह पर टाइगर रहता है जहाँ पे सब थिंग्स है। देखो अभी इस पिक्चर में ऑल दिस थिंग्स विच टाइगर नीड्स आर शोन। ओके, सो यू लुक एट देम केयरफुली एंड फाइंड दैट। नाउ अनदर क्वेश्चन, कैन यू टेल फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क? क्वेश्चन है कि सिल्क हमको कहाँ से मिलता है। तो सिल्क के कपड़े होते हैं ना एकदम चमकीले शाइनिंग, वो हमको कहाँ से मिलता है। नाउ हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर मंकीज़? मंकीज़ के लिए ट्री किस तरह से यूज़फुल है, और ये सबको मालूम है, इट्स जनरल नॉलेज। नाउ लुक, हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स? और बर्ड्स के लिए भी ट्रीज कितनी यूज़फुल है इसको भी मालूम है। ये सब तुम लोगों को लिखना है। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। ओके, ऑल दिस क्वेश्चन टू बी रिटन एंड फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द बुक एंड राइट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ टर्माइट्स मेक अ ट्री होलो? अभी टर्माइट्स ने कभी ट्री को होलो कर दिया, यानी उसको अंदर से खा कर उसको एकदम एम्प्टी कर दिया, यानी उसको खाली कर दिया, तो क्या होगा वो ट्री का? ये भी तुम लोगों को लिखने का है। ओके, सो ऑल दिस क्वेश्चंस टू बी रिटन सॉल्व
Okay. Next now, we get milk, meat, eggs, and several other things from animals. And some animals are useful for carrying burdens or drawing carts. So domestic animals are also used to help with the heavy farm work in fields, and dogs guard our houses. Sheep give us wool. Now look here in this parallel, the animals and their use are shown. Now look here what they do. अभी हमको क्या मिलता है एनिमल से? सबसे पहले हमको मिलता है मिल्क, मीट और एग्स. ओके, दूध, मांस और एग्स, अंडा, ये हमको एनिमल से मिलता है. और बाकी के भी थिंग्स उससे मिलते हैं, यही नहीं. दूसरी बात, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बर्डन को कैरी करते हैं, जैसे भी ऑक्स है, बुल्स है, डोंकीज़ है. वो क्या करते हैं? कार्ट को खींचते हैं और उनके ऊपर हेवी लोड रखा जाता है. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उस लोड को लेके जाते हैं. और फार्मिंग के वर्क के लिए भी ऑक्स और बुल्स का यूज़ बहुत होता है. ओके. दूसरी बात है डॉग्स. डॉग्स का काम है घर का गार्ड करना, घर को वो गार्ड करता है. ओके. और शीप हमको ऊल देती है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द एनिमल्स. हाउ यूजफुल दिस एनिमल्स आर फॉर ह्यूमन बींग. नाउ लुक दैट, डू यू नो. अभी एक क्वेश्चन क्या है कि तुम लोगों के नॉलेज है क्या, तुमको इसके बारे में मालूम है क्या? सो इवन द एक्सक्रीटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज ऑफ यूज टू ह्यूमन बींग्स. सबसे पहले दिया है कि एक्सक्रीटा एनिमल्स का, एक्सक्रीटा यानी उसका डंग, उसका गोबर वगैरह जो भी है, वो एनिमल्स के लिए बहुत यूज़फुल है. ओके. सॉरी, ह्यूमन बींग के लिए बहुत यूज़फुल है, इंसान के लिए. दूसरा पॉइंट, द डंग ऑफ कैटल इज मेड इनटू डंग केक्स एंड दे आर कंबस्टिबल. दे आर यूज इन सम प्लेसेस एज फ्यूल एंड व्हेन दे बर्न दे गिव आउट स्मोक. अभी देखो, अभी जो कैटल का डंग होता है, गोबर होता है डोमेस्टिक एनिमल्स का, उसके रूरल एरिया में इंडिया के डंग केक्स बनाए जाते हैं. ओके. वो गोल गोल, तो उसको सुखाया जाता है और उसका फ्यूल करके यूज़ किया जाता है. यानी उसको जलाते हैं, उसके ऊपर खाना बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरी कुछ चीज़ें बनाते, कुकिंग होती है. ओके. उसके बाद में दूसरा है वो, उससे धुआं भी निकलता है जो मच्छरों के लिए भगाने के लिए अच्छा रहता है. नाउ लुक, अ कंबस्टिबल गैस कॉल्ड गोबर गैस इज ऑल्सो obtained from cattle dung. Okay. And that too is used as a fuel. It burns without smoke. अभी देखो, इससे कंबस्टिबल गैस भी मिलता है गोबर गैस से. कंबस्टिबल है नहीं, ज्वलनशील, जिससे जल सकता है वो. और इससे क्या होता है, ये कैटल डंग से ही गोबर गैस बनाते हैं और इसका फ्यूल करके यूज़ करते हैं. और ये बिना स्मोक के जलता है, इससे स्मोक नहीं निकलता है. दूसरा यूज़ है, कैटल डंग इज यूज फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेज. अभी जो गांव में, विलेजेस में घर होते हैं, वो मड हाउस, मड के बने रहते हैं, मिट्टी के बने रहते हैं, उनको प्लास्टर करने के लिए भी गोबर का यूज़ किया जाता है, काऊ डंग का. देखो अभी द लास्ट पॉइंट, मैन्यूअर्स मेड फ्रॉम कैटल डंग एंड शीप pellets are good for plants and farmers use them for growing crops. अभी इन जो पेलेट्स से और काऊ डंग से एनिमल के डंग से मैन्योर भी बनाया जाता है. मैन्योर यानी खाद, जो फार्म में डालते हैं, फील्ड में डालते हैं क्रॉप्स के लिए. और उससे क्या होता है, बहुत अच्छा फसल आती है, वो फसल के लिए बहुत अच्छा रहता है. नेक्स्ट नाउ, सो दीज आर द यूजेस ऑफ एनिमल वेस्ट. ओके, फॉर द ह्यूमन बीइंग. नाउ लुक हियर, just as we need animals, we need plants too, and plants give us food grains, vegetables and fruits. We have flowers too. We use them for many different purposes. We get flowers from plants.
वी आल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लोथ्स। अभी देखो, जैसा हम लोगों को एनिमल्स का ज़रूरत रहती है, ओके, उसी तरह से हमको प्लांट्स की भी ज़रूरत रहती है, ओके। क्योंकि हमको प्लांट्स क्या देते हैं, फूड ग्रेन्स देते हैं। क्योंकि देखो, अभी खेत में अनाज आता है, फसल होती है, वो प्लांट्स ही है, उससे हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का फूड ग्रेन्स मिलता है कि नहीं, गेहूँ, जौर, बाजरा, ओके, और दालें और सब प्रकार का ये राइट वेजिटेबल्स भी। अभी देखो, और फ्रूट्स भी मिलते हैं। और हम लोगों को प्लांट से फ्लावर्स भी मिलते हैं। और फ्लावर्स का यूज़ तुम लोगों को मालूम है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से होता है। एंड कॉटन वूल हमको मिलता है प्लांट से, और उससे हम क्या करते हैं, कॉटन के क्लोथ्स बनाते हैं, कॉटन के कपड़े बनाते हैं कॉटन वूल से। अभी देखो, वी ग्रो प्लांट दैट आर यूजफुल टू अस एंड मेथोडिकली वी सो सीड्स एंड वी मेक sure that they get water. We give manure, and when necessary we spray pesticides if they are attacked by insects. इसके लिए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करते हैं जो हमको यूज़फुल है, और उनकी मेथड है, उस मेथड से हम उसको ग्रो करते हैं। जैसा खेतों में जो मेथड की जाती है, जो सब मेथोडिकली उनको सो करके सीड्स को उसको ग्रो करते हैं, और उनको वाटर वगैरह देते हैं, और मैन्योर भी देते हैं। मैन्योर यानी खाद, जो ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं ना, वो देते हैं। उसके बाद में और पेस्टिसाइड्स भी, जब वो ग्रो होते हैं, जो प्लांट्स आते हैं, तो उनके ऊपर इंसेक्ट्स आते हैं जो उसको खाते हैं, ग्रेन को, उससे उनको बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स को भी उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, वो सब कीड़ों को मार देते हैं। फिर इस तरह से वो प्लांट्स बच जाते हैं। सो प्लांट्स टू गिव टू अस एबंडेंटली, दे सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो हमको प्लांट्स भी बहुत कुछ देते हैं और हमारी सब ज़रूरतों को पूरी करते हैं। एंड अदर लिविंग थिंग्स आल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल नाउ, chameleons eat insects when they are hungry, and some snakes eat mice and frogs. Tigers eat deer, goats and sheep eat leaves of plants. अभी देखो, अभी बाकी के भी एनिमल्स जो है, लिविंग थिंग्स है, वो भी एनवायरनमेंट से उनका फूड अपटेन करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, एनवायरनमेंट से उसका फूड मिलता है उनको। जैसा एग्जाम्पल के लिए दिया है उन्होंने चैमिलियंस, वो एक लिजर्ड रहती है ना चैमिलियन, वो इंसेक्ट्स खाती है जब वो हंग्री होती है। फिर स्नैक्स माइस खाते हैं, माइस और फ्रॉग्स, चूहे और मेंढक खाते हैं। और टाइगर्स ईट डियर, ओके, एंड गोट्स एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स, कैटल ईट ग्रास। सो दिस इज अ different different things, different living things eat, okay, they feed on. A new term, अभी एक न्यू वर्ड दिया है, आर्बोरियल। आर्बोरियल क्या है, इसका मीनिंग देखेंगे हम। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड आर्बर विच मीन्स ट्री, एंड